Today's topic is non-homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient. Okay, we all know about the homogeneous linear partial differential equation with constant. Now, today we will discuss on non-homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient. An equation of the form f of dd dash is equals to f of xy. Equation of the form f of dd dash into z is equals to f of xy is called homogeneous. होमोजीनियस कब कहलाएगी? जब इसमें ये जो आपका f of dd dash is a polynomial and that the polynomial is homogeneous. अगर ये जो polynomial f dd dash का जो polynomial है जो d और d dash के लिए डिफाइंड है वो कैसा हो जाए? अगर वो homogeneous हो जाए then this equation is called homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient. लेकिन अगर ये वाला जो अपना पॉलीनोमियल है अगर ये कैसा हो जाए नॉन होमोजेनियस हो जाए तो नॉन होमोजेनियस किसमें होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ d and d dash. If this f dd dash is non homogeneous then the equation is called non-homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient. With constant coefficient क्या होगी? ये ऑलरेडी अपन बता चुके हैं कि जो d और d dash के मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट्स होंगे, राइट? तो non-homogeneous linear partial differential equation क्या है? अगर मान लीजिए कोई भी if we consider a differential equation f d dash into z is equals to f of xy. If in this equation f dd dash is a polynomial and that is non-homogeneous, then the equation is called non-homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient. For example, an equation is s plus p minus q is equals to sine x plus y. Okay, it is a linear partial differential equation with constant coefficient, but it is homogeneous or non-homogeneous. How to we identify it is homogeneous or non-homogeneous? तो सबसे पहले अपन देखें कि S मीन क्या होता है? That is del 2z by del x into del y, है ना? अगर मैंने इसको ऑपरेटर में कन्वर्ट किया then this become d into d and p is the partial derivative of first order with respect to a, that is del by del x. नोट किससे करते हैं? p से. And q is del by del y denoted by ऑपरेटर d dash. ठीक है, तो माइनस ऑफ d dash into z is equals to sin x plus y. ओके, अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि जो अपना पॉलिनोमियल f d d dash है वो क्या है? दिस इज द पॉलिनोमियल d d dash plus b minus of d dash. ये अपना पॉलिनोमियल बन रहा है, राइट? अब इस पॉलिनोमियल में अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है d into d dash इसका डिग्री कितना है? 2, यानी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव. यहाँ कैसा है? सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव. लेकिन ये वाला कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव. दिस इज आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो अपन ने क्या बताया था कि जब इक्वेशन में ये जो पूरी अपना f of dd dash है इसमें जब सेम ऑर्डर के डेरिवेटिव कंसिस्ट हो रहे हैं पूरे f dd dash में, अगर सेम ऑर्डर के डेरिवेटिव
कंसिस्ट हो रहे हो, तब आप इक्वेशन क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। लेकिन अगर उस इक्वेशन में कुछ टर्म्स फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव वाली है, कुछ सेकंड ऑर्डर के लिए, कुछ थर्ड टर्म के, यानी हर एक टर्म में जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है अगर सेम नहीं है, then that equation become non-homogeneous। यहाँ पे अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव वाली टर्म है, दिस इज द डेरिवेटिव टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज आल्सो टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ क्या हो रहा है, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर यानी होल इक्वेशन में जो पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऑर्डर है वो सेम नहीं है, इसीलिए इक्वेशन को आपने क्या कहा, नॉन होमोजेनियस। मींस जो FDD डेश है वो कैसा है, नॉन होमोजेनियस है, इसलिए आपकी इक्वेशन क्या कहलाएगी, नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्लियर, इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बात अपने को क्लियर होगी, ठीक है। अब इस टाइप की इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, how to find the solution of non-homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient। Okay, the complete solution of this equation is same as homogeneous linear partial differential equation with constant। जैसा आपने होमोजेनियस में कंप्लीट सोल्यूशन निकाला था, यहाँ पे भी आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, तो जिसको आप जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, z इज इक्वल टू क्या होगा, CF प्लस PIE होगा। मींस द कंप्लीट सोल्यूशन इज द सम ऑफ टू सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन इज CF एंड सेकंड इज PI। इन दोनों का जो सम होगा वो क्या देगा आपको, कंप्लीट सोल्यूशन। अब फिर वही कि CF कैसे फाइंड होगा और PI कैसे फाइंड होगा, तो PI को फाइंड करने के लिए आपको कोई भी नई प्रोसेस अब नहीं करनी। ओके, वी फाइंड PI सेम एज वी फाइंड PI इन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वहां पे बताया, वो फार्मूले आपने वहां पे सीखे, सेम फार्मूले यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, बट CF लिखने का रूल थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अपने दो केस फॉलो होंगे। फर्स्ट केस, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रूट्स आर रिपीटेड और इक्वल। तो दोनों केस में किस तरीके से CF लिखाएगा अपन वो देखें यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट वी डिस्कस ऑन हाउ टू राइट CF इन नॉन होमोजेनियस लीनियर partial differential। First of all, we solve FDD dash, जो आपका FDD dash होगा, ठीक है। इसको रिसॉल्व किसमें करना है, इन लीनियर फैक्टर्स। इसमें ब्रेकअप करोगे इसका लीनियर फैक्टर, और वो लीनियर फैक्टर किसकी टर्म में होंगे, DD dash की टर्म में वो फैक्टर आने चाहिए। Okay, so first we solve FDD dash in linear vectors। Okay, for example, आपने एक इक्वेशन की, उसके आपको लीनियर वेक्टर्स मिले d माइनस m इंटू डी डैश माइनस में अल्फा 1, ठीक है। एक लीनियर वेक्टर आपको ये मिल गया, दूसरा लीनियर वेक्टर आपको मिला d माइनस में m2 इंटू डी डैश माइनस अल्फा 2। और भी फैक्टर डिपेंड किस पे करेगा, आपकी इक्वेशन किस ऑर्डर की, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है तो 3 लीनियर फैक्टर बना देंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 लीनियर फैक्टर्स अपन ने बना दिए, और अगर उससे ज्यादा ऑर्डर है तो आपके लीनियर फैक्टर्स बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या कहा कि मान लीजिए मेरे पास में कोई एक ऐसी नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है, जिसके लीनियर फैक्टर ये थे इनटू z इज इक्वल टू g।
तब मैं इसका CF कैसे लिखूंगा, ठीक है। देन द CF is equals to e to the power alpha 1 into x y1 y plus m1 into x plus e to the power alpha 2 into x y2 y plus m2 into x. This is the CF for this equation. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये जो भी मेरा एफ डी डी डैश लीनियर वेक्टर में कन्वर्ट होगा, वहां से मैं चूज क्या करूंगा, डी डैश के मल्टीपल, ठीक है। तो डी डैश के जो मल्टीपल होंगे फर्स्ट वेक्टर में, उसको m1 मैंने नाम दे दिया, जो दूसरे में था उसको m2 नाम दे दिया, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 आर द कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब जब ये मैं चूज कर लूंगा कि मेरे अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, अल्फा 2 की वैल्यू क्या है, m1 m2 की वैल्यूज क्या है, तब मैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस फॉर्म में लिख सकता हूं, e to the power alpha 1 into x y1 y plus m1 जो भी आपका रूट होगा वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे into x plus e to the power alpha 2 into x y2 y plus m2। अगर फैक्टर्स बढ़ जाते, तीसरा फैक्टर रहता m3 अल्फा 3 भी रहता, तो यही पैटर्न अब आगे फॉलो करेंगे, मींस e to the power alpha 3 into x into y3 y plus m3 x and so और यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों जो फैक्टर थे कैसे थे, डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे, क्योंकि इसमें m1 m2 अलग था, अल्फा 1 अल्फा 2 अलग था, ठीक है। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में जो आपके लीनियर वेक्टर है वो रिपीटेड है, ठीक है, अगर रिपीटेड है तब आपका CF लिखने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका केस 1। ठीक, केस 1 में क्या था, व्हेन द लीनियर वेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट, एंड द केस 2 व्हेन द लीनियर वेक्टर्स आर रिपीटेड, ठीक है। वेक्टर्स आर रिपीटेड, अब रिपीटेड मतलब दो होंगे, दोनों बिल्कुल सेम होंगे या होल स्क्वायर होल क्यूब की फॉर्म में होंगे, देन पीआई क्या होगा। फॉर एग्जांपल अपन ने एग्जांपल यहाँ पे देखा कि मान लीजिए मेरे पास जो इक्वेशन थी उसका लीनियर वेक्टर था d माइनस m इंटू डी डे माइनस अल्फा इंटू z इज इक्वल टू c, right? Then the complementary function CF is equals to e to the power alpha into x, ठीक है, रिपीटेड था यानी ये दो या दो से ज्यादा बार जितना भी आपको लेना हो लिख सकते। अभी अपन दो बार रिपीटेड मान के चल रहे हैं, ठीक है। then CF is e to the power alpha into x, यहाँ पे आ जाएगा आपका y1 y plus mx plus x into y2 y plus m, राइट। तीन फैक्टर रिपीट होंगे तो इससे अगली टर्म क्या बन जाएगी, x square y3 y plus mx, ओके। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्लियर। ये आपको लिखने के तरीके हो गए नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में CF इस तरीके से लिखा जाता है, ओके। 3 रिपीटेड रूट होंगे तो इसी को आगे एक्सटेंड करना है, e to the power alpha x को अपन को कोई चेंज नहीं करना, क्लियर। तो देखिए इसी पे आपके बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है फॉर्म किए जा सकते हैं। अभी अपन एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपन को ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अपन सॉल्यूशन डायरेक्ट निकालेंगे। द क्वेश्चन इज s plus p solve s plus p minus q minus z
इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कह रहा है, s प्लस पी माइनस क्यू माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करने में तो अपन को क्या समझ में आ रहा है, इसका एक ही सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड जब 0 होता है तो पी आई नहीं निकलता, यानी सिर्फ अपना जो सी एफ होगा दैट इज द कंप्लीट सोल्यूशन। अब सी एफ कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो अपन इक्वेशन आइडेंटिफाई करें, ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, तो पहले मैं इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिख देता हूँ, राइट। सोल्यूशन, वी राइट द इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। ऑपरेटर फॉर्म में अपनी इक्वेशन क्या आ गई, एस का मीनिंग अपन ने क्या लागू किया था, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ओके, तो ये क्या कहलाता है, d into d del। So this is d into d del। t means the derivative of z with respect to x in first order, that is del z by del x and denoted by d, and q is d dash and minus of 1, सभी में से z आपने कॉमन ले लिया एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपने इक्वेशन को रीराइट किया, रीराइट करने पे मेरे को इक्वेशन क्या मिल गई, d into d dash plus d dash d minus d dash minus 1 into z। ओके, अब अपन को क्या करना है, जो मेरा z के मल्टीपल दिस टर्म, इसको आप क्या बोलते हैं, एफ डी डी डे, है ना, यही कहा ना अपन ने, दिस इज एफ डी डी डे। तो सी एफ निकालने के लिए प्रोसेस में अपन ने पहले क्या कहा कि इस एफ डी डी डे को लीनियर फैक्टर में ब्रेकअप करना है या लीनियर फैक्टर में इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसके लीनियर फैक्टर्स बना लें, जब लीनियर फैक्टर्स अपने पास में होंगे तभी अपन उसका सी एफ लिख सकते हैं। तो द लीनियर फैक्टर कैसे कर सकते हैं, यहां से फर्स्ट टू टर्म में से मैंने d कॉमन ले लिया, क्या बचेगा d डैश प्लस 1, लास्ट टू टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, दिस इज d डैश प्लस 1 इनटू z इज इक्वल टू 0, राइट। फिर d डैश प्लस 1 आपका एक फैक्टर था वो कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रहा d माइनस ऑफ 1। ठीक है, d प्लस 1 कॉमन आ गया, क्या बचा d माइनस ऑफ 1 इंटू z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने जो लीनियर फैक्टर्स फाइंड किए वो लीनियर फैक्टर्स क्या आ गए, d डैश प्लस 1 इंटू d माइनस 1 इंटू z इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसकी हेल्प से अपन CF निकाल सकते हैं क्योंकि अपना फैक्टर किस फॉर्म में आ गया, लीनियर फॉर्म में अपना फैक्टर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो वी कंपेयरिंग दिस इक्वेशन नाउ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, ठीक है, दोनों फैक्टर अलग अलग दिख रहे हैं ना, यानी रिपीटेड फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट वाला फार्मूला यूज होगा, d माइनस में m1 d डैश माइनस में अल्फा 1 एंड d माइनस m2 d डैश माइनस में अल्फा 2। ठीक है, कंपेयरिंग दिस, देन वी गेट अब देखिए फर्स्ट फैक्टर से मेरे को क्या जरूरत है कि एक तो m1 की और अल्फा 1। तो फर्स्ट फैक्टर आपका यहाँ कंपेयर किया तो यहाँ d डैश का मल्टीपल कितना दिख रहा है आपको, d डैश का मल्टीपल कुछ नहीं है, मीन दैट इज 1। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1,
देन अल्फा वन जो कांस्टेंट टर्म है, अगर यहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं तो अल्फा वन यहाँ माइनस साइन है और यहाँ क्या है प्लस वन। जब कंपेयर होगा तो इस तरीके से कंपेयर करोगे आप, इसको ऐसे लिखोगे डी डेज माइनस में माइनस ऑफ वन, तब ये कंपेयर होगा डी डेज वन, ठीक है। m1 डी डेज माइनस में अल्फा, अल्फा वन कितना बना माइनस के वन। ओके, तो आपके पास में दोनों वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू अपनी क्या हो गई m1, m1 की वैल्यू कितनी 1, अल्फा वन उसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस। अब दूसरे फैक्टर को जब कंपेयर किया तो m2 की वैल्यू देखें। अब इस वाले फैक्टर में डी डैश है ही नहीं, जब डी डैश ही नहीं है तो उसका मल्टीपल भी नहीं है, मतलब m2 कितना हो गया आपका 0 एंड अल्फा 2 दैट इज प्लस 1। ठीक है, m1 मालूम, m2 मालूम, अल्फा 1 मालूम, अल्फा 2 मालूम, तो अपन CF लिख सकते हैं। Therefore the complementary function CF is equals to, so the complementary function CF is equals, फार्मूला क्या था अपना e to the power अल्फा 1 into x, तो e to the power अल्फा 1 के लिए कितना आ गया माइनस ऑफ 1 into x, then y1 y प्लस m1 into x, ठीक है। तो y प्लस अब m1 into x, अब m1 की जगह यहाँ पे कितना है आपके पास में 1, ठीक है, ये हो जाएगा y1 ठीक, y प्लस m1 into x that is प्लस फिर सेकंड वाला फैक्टर के लिए दिया तो e to the power अल्फा 2 के लिए कितना है आपका यहाँ पे 1, दिस इज e to the power plus 1 into x, then y2 y plus m2 into x, m2 यहाँ पे कितना है अपना 0 है, तो ये क्या दे देगा आपको only y2 y। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अपना सोल्यूशन क्या आ गया e to the power x y1 y plus m1x plus e to the power minus x y2 y plus m2 into x, ठीक है। तो ये अपना तरीका होगा CF निकालने का। एक छोटा सा क्वेश्चन रिपीटेड वेक्टर में भी बता देता हूं मैं, तो आपको और आसानी हो जाएगी, दोनों के लिए लिखना अपन को आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसका PI लिखना भी सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड PI, कंप्लीट सॉल्यूशन वाला एक आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज d square plus 2dd dash, question is d square plus 2dd dash d square plus 2dd dash plus d dash square plus 2d plus d square plus 2d plus 2d dash and plus 1 into z plus 1 into z is equal to 0, ठीक है। ऑलरेडी अपनी इक्वेशन ऑपरेटर फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे रिराइट करने की अपने को जरूरत नहीं, सिर्फ हमको क्या करना है जो अपनी इक्वेशन है उसको लीनियर फैक्टर में उसका ब्रेकअप करना है, ठीक है ना। क्या हो सकते हैं लीनियर फैक्टर, ठीक। जब मैंने इसके लीनियर फैक्टर्स किए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दिस इज d प्लस d डैश प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू z इज इक्वल टू, अगर अपन इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो देखिए क्या मिलेगा, a स्क्वायर मींस b स्क्वायर, फिर क्या आएगा b स्क्वायर मीन a का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b डैश का स्क्वायर, ये भी का मान है आपकी,
then c square means 1 का square, that is 1b. फिर क्या लेते हैं आप 2a into b, तो 2a into b this term, ठीक है. then क्या आएगा 2ac, तो ये हो गया 2 into b, then 2bc, तो ये भी हो गया आपका 2. क्लियर है. तो ये आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं. तो आपका लीनियर फैक्टर जो भी बन रहा है वो कैसा हो गया, रिपीट हो गया. d प्लस d डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों फैक्टर कैसे हैं, बिल्कुल सेम हो गए. ठीक है. इसीलिए अब यहाँ पे CF लिखने का तरीका बदल गया. ओके, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with d plus m into d dash plus alpha whole square into z. ठीक है, क्योंकि रिपीटेड फैक्टर है ना, तो उसके लिए अपन जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं. ठीक. तो यहां से अपने पास में m की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ कंपेयर के d डेश का मल्टीपल 1. अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, कंपेयर किया कितना हो गया, दैट इज आल्सो 1. अब रिपीटेड के केस में अपन कैसे लिखते थे CF, so the CF is equal to e to the power alpha into x, means 1 into x, that is x. Then function phi1 y plus mx plus x into phi2 y plus mx. यही था ना अपना सेकंड फार्मूला. ठीक है. तो अब अपन ने सेकंड वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. ठीक. तो ये क्या दे देगा मेरे को, e to the power alpha into x, तो ये हो गया y1 y, ये दोनों माइनस में होंगे, ये माइनस से कंपेयर होता है ना. दिस इज -1, दिस माइनस, तो e टू द पावर माइनस है y1 y माइनस ऑफ x प्लस x into y2 y minus of. So this is the solution or this is the CF for the equation. Clear यहाँ पे, कोई confusion?